Hello everyone, welcome to my channel DSC, that is Dynamic School of Excellence. So today we are going to discuss part 3 of power sharing. Now this chapter is from class 10 civics. So we have already discussed two important points. One was the case study of Sri Lanka and the other one was case study of Belgium. Now today we are going to end this chapter with two other important points. So now let's see what are the important points that we have to discuss. तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो है various forms of power sharing, that how power can be shared in different ways. Now two things I have already explained in part 1, but still we'll revise everything. So the first is horizontal power sharing. Now second, vertical power sharing. Third is power sharing among social groups. So this also we have to see. And the fourth point is power sharing among political parties, movements, and pressure groups. So these are the 4 points we will see in detail now. First of all, let's start with horizontal power. Now, if we talk about horizontal power sharing, what it means. So when power, political power basically, is shared among various organs of government such as legislative, executive, and judiciary, then it is called horizontal power sharing. So I've written in short here, you can just write the complete sentence. Now this could be asked just as one question, so you have to prepare this part in detail. Now, when we say horizontal power sharing, what it means that we have seen. Now its advantages. Now why we have this system. Now, as I discussed earlier also, legislature is the people who make laws. जो laws बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं legislature. जैसे हमारे politicians वो नए नए laws बनाते हैं. Recently our government have made so many new laws. कई बार laws बनाते हैं, कुछ laws को वो खत्म भी कर देते हैं. They abolish those laws. So we know that CAA is a new law that was passed. So these are the new bills which keep on passing in the government. Second is executive. Whatever laws are there, they need to be executed also. Executed मतलब उन्हें अमल में करना बहुत जरूरी होता है. So that is also done. Who does that? Our police department. We have different government officers. We have DM, district magistrate, collectors, and so many people are there. So they just make sure that in every part all the rules and regulations are properly executed. Now the third one is judiciary. Now this judiciary, what it does, it has the main work of assessing that whatever laws have been passed, whether they are executed properly or not. If somebody is not following those laws and rules and regulations, so judiciary punishes them. Okay, तो जहां पे laws follow नहीं होते हैं वहां पे judiciary पनिश करती है. चाहे वो लोग हैं, सिविलियंस भी हो सकते हैं और पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, वो एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग भी हो सकते हैं, कोई भी है. तो एवरीबडी इज पनिशेबल, मतलब रूल्स सबके लिए बराबर हैं. तो if anybody is doing any crime, so that person is liable to be punished. So this is what we have to remember. Now we talk about the second point. Okay, what are the other advantages? Now each organ keeps a check on others. So as here power is divided, among these three organs, so they can keep a check on each other. Judiciary keeps an eye on legislatures, how they are doing work, whether they are exercising their power in the right manner or not. तो judiciary सबके ऊपर नजर रखती है. ऐसे ही जो ये मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स भी अपने जितने भी दूसरे लेवल के लोग हैं सारे, उनका पूरा they just keep an eye on them. So they supervise their work. For example, prime minister. So prime minister is watching everybody's work, how his MPs are working and how the other people, how different states chief ministers are working. तो वो एक दूसरे पे नजर रखते हैं. एक और इस तरह से जो इवन किसी स्टेट का सीएम भी है या कोई और एग्जीक्यूटिव लेवल पे या कोई कलेक्टर भी है, तो वो भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता है. सो दिस इज हाउ
here this power remains, equal. So this is our third point, कि they enjoy different powers at the same level. तो यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, they have got the equal power. This is another point. Equal power होने से क्या होता है कि nobody is able to subjugate others. मतलब एक दूसरे को वो नीचा नहीं दिखा सकते हैं या उन्हें सप्रेस करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं. मतलब अगर कोई पॉलिटिशियन है तो वो जुडिशरी को अपने अंडर नहीं ले सकता है. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया it is not possible to influence judges because they are independent. Supreme Court, High Court, ये सब independent है. इन्हें किसी भी मिनिस्टर के अंडर नहीं रहना पड़ता है. ठीक है. So this we should know. And no one is subordinate to others, as I have explained. So these are the points that you have to explain with examples, as I have given. No doubt there are so many countries where these rules are not followed properly, जहाँ पे जो politicians होते हैं they try to curb the power of judiciary or executives. तो ऐसा भी होता है. In 9th class also you have studied about that, some people like Robert Mugabe and all that you have studied. So they try to undermine the power of judiciary and his executives. लेकिन फिर भी अगर एक अच्छी कंट्री है जहाँ पे सारे रूल्स फॉलो होते हैं तो दिस थिंग रियली हेल्प्स एंड इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट. सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्टिकल पावर. अब इस वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है कि पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल्स. जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सबसे पहले जो पावर है it is shared among various levels of government, that is central, state and local. अब ये क्या होते हैं central state? Central government होती है जहाँ पे MPs हैं, prime minister है और they basically take care of the defense. It comes under that. और export import ये सारी चीजें उन्हें देखनी होती हैं. And number of other things are there which they have to, मतलब जो पूरे देश के लिए जो decisions लेने हैं वो सारी चीजें central government करती है. If we talk about state government, what it does, it mainly takes care about their agriculture, about their trade, police, how they have to manage them, regulate them. So everything, suppose they have to make decisions about agriculture. Okay, in our state, we want to give some subsidy to the farmers. तो वो कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट. कि भाई हमें सब्सिडी देनी है. हमें सब्सिडी मतलब कि वी वांट टू गिव आवर फार्मर्स सम कंसेशन, सम काइंड ऑफ डिस्काउंट. तो वो चीजें हैं. या फिर वो कुछ प्रमोट कर रहे हैं, कोई पॉलिसीज ला रहे हैं जिससे कि वो एग्रीकल्चर को और डेवलप कर सकते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स आर डन बाय स्टेट गवर्नमेंट. ऐसे ही ट्रेड में अलग अलग जो रूल्स रेगुलेशंस आते हैं, सो दे डू दैट. लोकल गवर्नमेंट जो होती है, लोकल गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है काउंसिलर्स को. इन सिटीज आई एम टॉकिंग अबाउट. वहां पे म्यूनिसिपैलिटी होती है या फिर जो बड़े शहर होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वहां पे होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो ये क्या करते हैं? इनका काम होता है कि भाई रोड्स बिल्ड करना है उस एरिया में, पार्क्स को मेंटेन करना है और सीवेज वगैरह सारी चीजें देखी जाती हैं. और जो गार्बेज है उसे कहाँ पे डिस्पोज ऑफ करवाना है, दे हैव टू अपॉइंट पीपल एंड ऑल दैट. सो ये सारी जो चीजें हैं ये देखती है लोकल गवर्नमेंट. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि पावर को शेयर कर दिया. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक तो आपको ये तीनों चीजें समझानी है कि सबके क्या क्या रूल्स है. अब इसका और क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है. यहाँ पे क्या होता है कि इस लेवल पे सबके अलग अलग जूरिसडिक्शंस हैं. अब ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर जब हम फेडरलिज्म पढ़ेंगे उसमें भी आएगा. व्हाट इज जूरिसडिक्शन? कि द एरिया वेयर समबडी हैज लीगल अथॉरिटी. मतलब क्या होगा कि everybody is given a particular area where they exercise their authority. This is what happens. So the next thing is they have particular defined rule. सबके अपने अपने roles हैं.
सबके अपने अपने एरियाज हैं, जैसे अभी यहाँ पे मैंने समझाया आपको, तो ये चीजें आपको उसमें बतानी है। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है कि कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता है, सबके जुरिस्डिक्शन है, मतलब अथॉरिटी सबकी अलग अलग है। अगर एक सीएम है, मतलब एक किसी स्टेट का सेंट्रल चीफ मिनिस्टर है, सॉरी सेंट्रल नहीं, चीफ मिनिस्टर है, तो वो अपने एरिया, अपने स्टेट के बारे में ही डिसीजन लेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसको कहते हैं जुरिस्डिक्शन। अगर एक लोकल गवर्नमेंट है, मान लो अगर एक गांव में ग्राम पंचायत है, तो उसको सिर्फ अपने गांव के ही डिसीजंस लेने हैं। वो एक बड़े लेवल पे एक स्टेट के या जो पूरे इंडिया में जो चीजें होंगी, एक पूरे कंट्री में जो चीजें होंगी, उसमें वो अपनी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो सबके अपने अपने एरियाज हैं जहाँ पे उन्हें काम करना होता है, और सबके अपने अपने रोल्स होते हैं। सो दिस इज हाउ दिस पावर इज शेयर्ड। अब आते हैं थर्ड। यहाँ पे क्या होता है कि पावर इज शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स। नाउ व्हाट हैपेंस हियर कि sometimes power is shared among different cultural और religious groups। जैसे एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में क्या किया है, सम पावर इज गिवन टू द कम्युनिटी गवर्नमेंट आल्सो, सो दैट दे कैन प्रमोट देयर लैंग्वेज कल्चर, ताकि जो डच हैं, फ्रेंच, जर्मन, दे डू नॉट फील that their language or their culture is not at all given importance or prominence। सेकेंड, अगर आप इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया में कुछ पावर किसको दी गई है, SC ST एंड OBC को। हाउ दिस पावर इज गिवन, बाय गिविंग रिजर्व्ड सीट्स टू देम। तो इससे क्या होता है, व्हेन दे हैव गॉट रिजर्व्ड सीट्स इन द पार्लियामेंट, तो वहां पे उन सीट्स पे जो लोग, जो मिनिस्टर्स आएंगे, वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या OBC की ही होंगे। OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, SC मतलब शेड्यूल कास्ट, ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इस तरह से उन्हीं को ही वो सीट्स देंगे। इससे क्या होगा कि जब जो डिसीजंस लिए जाएंगे पार्लियामेंट में, तो वो भी अपने लोगों की बात पहुंचा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो एक्सप्लेन, दे कैन ऑल्सो कैरी फॉरवर्ड देयर इश्यूज इन द पार्लियामेंट। तो इस तरह से पावर को शेयर किया गया है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हो वुमेन का। वुमेन हैव गॉट रिप्रेजेंटेशन इन लोकल गवर्नमेंट। जो ग्राम पंचायत या जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो इलेक्शंस होते हैं, वहां पे 33% जो रिजर्वेशन है, दैट इज गिवन टू वुमेन। तो वुमेन हैव आल्सो गॉट इंपॉर्टेंस हियर दिस वे, राइट। फोर्थ जो पॉइंट है, उसमें आपको क्या याद रखना है, फोर्थ पॉइंट जो है, दिस इज अबाउट दी political parties। There are many political parties that represent different ideologies and share power when they form alliance, जिसे हम कहते हैं coalition government। अब ये coalition government क्या होती है, जैसे मान लो कोई भी एक पार्टी है, बीजेपी है, बीजेपी को कुछ सीट्स कम पड़ रही हैं अपने मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, जो छोटी पार्टीज होती हैं, रीजनल पार्टीज होती हैं, उन्हें अपने साथ मिला लेते हैं। तो बीजेपी ने यही किया है कि बीजेपी ने छोटी छोटी पार्टीज को अपने साथ मिला के यूपीए की एक गवर्नमेंट बना ली है। उसे हम यूपीए कहते हैं। वो होता है यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो इसमें क्या होता है कि एक अलायंस बना लिया, अलायंस मतलब एक ग्रुप बना लिया। अब वो एक यूपीए की सरकार है। यूपीए में नाउ मेजर जो है वो बीजेपी है और बाकी की छोटी छोटी पार्टीज है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बीजेपी इज शेयरिंग पावर विद दोस स्मॉल रीजनल पार्टीज ऑल्सो। तो इस तरह से क्या होता है कि जो छोटी पार्टीज होती हैं, तो उन्हें भी एक मौका मिल जाता है पार्लियामेंट में आने का, और अपने जो एरियाज या अपने जो लोगों के जो इश्यूज हैं, वो वहां पे वो लेके आ सकते हैं। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएंगी जब हम करेंगे अपना चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। तो उसमें जो अलग अलग पार्टीज की जो आइडियोलॉजीज हैं, जिस हिसाब से वो काम करते हैं, वो आप फिर बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। दूसरी एक चीज होती है कि पावर समटाइम्स इज शेयर्ड विद बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। कैसे, हम उन्हें कोई सीट तो दे नहीं रहे हैं पार्लियामेंट में, लेकिन ये क्या होते हैं, जब भी मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं और दे कैन इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट।
and the government's decision making. Sometimes they succeed, sometimes they don't. तो businessmen क्या करते हैं, when they make the group, they can force the government to change certain laws. जैसे government ने एक law pass किया था CAA का, तो people got united and they opposed that. ऐसे ही अभी एक किसान बिल आया था recently, आपको पता होगा. In so there also people opposed and did not follow कुछ लोगों ने. तो ये है मूवमेंट्स, यहाँ पे मूवमेंट्स हो रही हैं, प्रेशर ग्रुप्स हो रहे हैं, इसके थ्रू लोग अपोज करते हैं और गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि यू हैव टू मेक चेंजेस टू योर डिसीजंस. दिस इज व्हाट हैपेंस. तो यहाँ पे हमारे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पूरे होते हैं. एंड नाउ एक लास्ट क्वेश्चन आपके साथ और डिस्कस करूंगी, दैट इज द पावर शेयरिंग वेदर इट इज डिजायरेबल और नॉट. ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछते हैं कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है. तो here you have to give the example of श्रीलंका, बेल्जियम, इंडिया, जहां पे पावर को शेयर करने से क्या हुआ है, क्या फायदे हुए हैं, वो आपको बताने हैं. सबसे पहला फायदा क्या है, there is reduction in social conflict. तो जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं, एज वी हैव सीन इन बेल्जियम. क्योंकि जब आप पावर को शेयर करते हो अलग अलग ग्रुप्स के साथ, कम्युनिटीज के साथ, तो पीपल फील हैप्पी कि भाई चलो अवर राइट्स एंड आर नॉट at all undermined. Second, ensures political stability. It can ensure political stability. कैसे? Basically, what happens that if you are changing again and again, if the power is not shared, जैसे कहाँ पे हुआ था, श्रीलंका में, when the power was not shared, there was so much political instability, and there was a lot of violence, conflicts among people. So this kind of things do not take place. Other thing, it promotes national unity. अब वो national unity कैसे promote होती है इससे, कि when people feel that their rights are not at all suppressed, are not at all, they are not deprived of their rights and they are given equal opportunities, so they feel happy and they can live even in the diversity. Now here you can give the example of India. India is that country where it is really helping us. अब बुक में एक पॉइंट दिया हुआ है कि imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. कैसे? So this you have to understand कि majority community कई बार क्या होती है कि अपनी पावर को एक्सरसाइज करती है, they do it and they try to undermine the minority groups. But this way what happens कि there are so many conflicts which are created and due to that people do not feel united. उन्हें लगता है कि हम alienate हो गए हैं and due to that other problems occur as we have seen previously. So if we want to really unite our country, we need to share the power. नहीं तो क्या होगा, इंडिया ने जो पहले गलती की थी वही चीज बाद में भी होगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल बिफोर इंडिपेंडेंस मुस्लिम्स हैड आस्क्ड फॉर देयर राइट्स. तो मुस्लिम्स ने अपने राइट्स मांगे थे. क्या कहा था उन्होंने कि आप हमें पार्लियामेंट में रिजर्व सीट्स दे दो मुस्लिम्स को, ताकि हमें भी थोड़ी सी पावर मिले, हम भी जब डिसीजन मेकिंग हो तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, वी कैन कंट्रीब्यूट टू दैट. But Hindu Mahasabha and all, the leader was there, Mr. Jacker, he opposed that and he did not give those reserved seats. मतलब वो power share नहीं करना चाहते थे with Muslims, and that's why Muslims started demanding the separate state, and that's why we have this Pakistan and पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बन गए थे. बाद में बांग्लादेश के नाम से जो ईस्ट पाकिस्तान था वो अलग हो गया and it became a separate nation. Otherwise they were the part of India. तो ये सारी चीजें आप इसमें बता सकते हो. Other thing is that save the majority along with the minority. तो सिर्फ यहाँ पे अगर आप पावर को शेयर कर रहे हो तो आप सिर्फ
माइनॉरिटी को नहीं सेव कर रहे हो, यू आर ऑल्सो सेविंग द मेजोरिटी, बिकॉज इट कैन रूइन द मेजोरिटी एज वेल. पावर नहीं शेयर होती है तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. एज यू नो, इन श्रीलंका lakhs and lakhs of people had died, not only the Tamilians but also the Sinhala. तो नुकसान तो सभी का है, तो इसलिए पावर को शेयर करना बहुत जरूरी है. पावर शेयर करने से एक और फायदा है कि nobody can exercise unlimited power. Everybody keeps the power in balance. So these are the various advantages of power sharing that you have to remember. अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि मॉरल और प्रूडेंशियल रीजंस. तो अगर प्रूडेंशियल रीजंस पूछते हैं तो आपको ये लिखने हैं, और अगर मॉरल रीजन भी पूछा साथ में तो आपको ये बताना है कि भाई व्हाट इज मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग. बेसिकली इसमें एक ही चीज आपको अच्छी तरह से समझनी है कि जो पावर शेयरिंग है, इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. कैसे? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि व्हेन वेयर पीपल रूल, people choose their representative and people rule through their representatives. तो अगर आप पावर को ही नहीं शेयर करोगे, अगर आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं दोगे, मान लो अगर इंडिया में सिर्फ हिंदू कम्युनिटी ही है जो पार्लियामेंट में है, तो उससे क्या होगा कि जो बाकी के कम्युनिटीज हैं, दे विल नॉट हैव द रिप्रेजेंटेशन. तो उनकी बात कैसे पहुंचेगी पार्लियामेंट में, और जो डिसीजन मेकिंग होगी क्या वो बहुत हेल्दी होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो पावर को शेयर करना का मतलब क्या है कि यू आर गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट समटाइम्स कास्ट्स, और समटाइम्स वो कम्युनिटी लैंग्वेज कम्युनिटी भी हो सकती है, रिलीजन कम्युनिटी भी हो सकती है. तो वी नीड टू शेयर पावर विद देम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस तरह से पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है, और इट शुड बी. तो ये आपको अपने हिसाब से ही लिखना होगा. जस्ट आई हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है. तो ये की वर्ड्स हैं जो आपको उसमें ऐड करने हैं, क्योंकि पावर शेयरिंग का मतलब ही यही है कि जहाँ पे पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड, लोगों की बात, लोगों के हिसाब से आपको रूल करना है. और वो कब होगा? जब when people's representatives will be the rulers, will be the politicians. So that's why this is the very essential in democracy. Other thing is that a legitimate government is one where citizens through participation acquire a role in the system. Citizens कैसे रोल मिलेगा उन्हें? इसी तरीके से कि अपनी रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे. वो हम जब वोट देते हैं तो वो हमारा एक रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है कि हम किसकी गवर्नमेंट चाहते हैं, so that decisions can be made in a better way. तो this thing we have to understand. अगर हम शॉर्ट में देखें एक समरी, तो reduces the conflicts, ये कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं. It ensures the political stability. It also involves the participation of people. ये moral reason जो अभी हमने देखा है in short. And none of the organs can exercise unlimited power. So एक check and balance रहता है, जैसे हमने horizontal power sharing में देखा. So this is the summary of what we have done. तो अगर आपसे ये क्वेश्चंस आते हैं इस तरह से कि पावर शेयरिंग क्यों इसेंशियल है डेमोक्रेसी में, या व्हाई इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी जस्टिफाई, यू हैव टू राइट these points only with examples of Sri Lanka, Belgium, India, and all that. So we end our class here. Thank you for watching this video. Please like, share, and subscribe. And you also can write in the comment box if you have more queries. And study properly, understand the concepts, and avoid rote learning. So मिलते हैं next video में. Till then, bye everyone.